Hello and welcome. You're watching NewsX and I'm Megha Sharma. Now, in the run-up to the general election, the BJP is all set to announce its list of 100 candidates after a midnight meeting that went on up until 4 a.m. between Prime Minister Narendra Modi and the other senior leaders of the BJP. Let's start our conversation. Joining me on the telecast is Mahima Kataria. Mahima, quickly tell me, when is it that the list of 100 candidates, the first list, is going to be released by the BJP? Megha, before going to the 100 candidates, like you rightly correctly pointed out, the Bharatiya Janata Party on Thursday, that is yesterday night, convened the Central Election Committee meeting to finalize the first list of candidates for the Lok Sabha elections. And the meeting, which began at 10:30 p.m., lasted for around 4 hours. And as per the reports, the first list was expected to be released amid the speculations on whether some union minister who are currently in Rajya Sabha member would also contest for Lok Sabha. So there was speculation that the list would be released today after the discussion. But now, if it didn't happen today, it might happen on the 3rd and the 4th, but the names that are doing the rounds and the speculations on the name, I would like to read out the list that who will be in the first list. The top leaders of the Bharatiya Janata Party, that is the High Command, will be in the list. Prime Minister Narendra Modi will contest from Varanasi. We have Rajnath Singh from Lucknow. We have Amit Shah from Gandhinagar, Smriti Irani from Amethi, Anurag Thakur for Hamirpur, Prahlad Joshi from Prahlad Joshi. We have Gajendra Singh Shekhawat from Jodhpur. We have G. Kishan Reddy. We have Sanjeev Balyan from Muzaffarnagar. We have Shantanu Thakur from Bengal. So these are the top names that are going to be in the top list. Also among those that are going to contest, those were in Rajya Sabha and now will contest for Lok Sabha would be Dharmendra Pradhan from Sambalpur. We have Bhupendra Yadav from Bihar. We have Mansukh Mandviya Megha from Ida. He contests from Bhavnagar or Kerala. It is said that he is going to contest from Thiruvananthapuram. We have Jyotiraditya Scindia from Gwalior or Shivpuri. We have Shivraj Singh Chauhan as well from Madhya Pradesh. Though there were big statements from Shivraj Singh Chauhan, but we also have Shivraj Singh Chauhan, whose name could be in the 100 candidates that will be released by the Bharatiya Janata Party. He might contest from Bhopal. So ahead of the notification of the dates for the Lok Sabha, Megha, the Lok Sabha election, BJP has been going out to reach out to the voter through conferences, determined to secure maximum number of seats in the upcoming Lok Sabha election, in the line with Prime Minister Narendra Modi's target of 370 plus for the party and 400 that is beyond 400 for the NDA. And the BJP is it won't be wrong to say that now BJP is set to release the first list after the Central Election Committee meeting that happened yesterday, late night meeting that lasted for more than 4 hours. We had Mahima, quickly also get us to know, because as per sources we are getting to know that the BJP is in talks with Yuvraj Singh. He may be fielded as a candidate from Delhi Lok Sabha seat. In fact, we are getting to know the other seats that are going to be fielded by the BJP leaders. I'm going to put out these names. Bansuri Swaraj is likely to contest from New Delhi, Manoj Tiwari from Northeast Delhi, Praveen Khandelwal from Chandni Chowk, Pravesh Verma from West Delhi. So, how much truth do these rumors have? Well, these names are just speculations for now till the time there's a list that has been given by the Bharatiya Janata Party. That is the official list that will be released by the Bharatiya Janata Party, because we had the CEC meeting. But yes, Bansuri Swaraj name from the New Delhi seat is doing the rounds. The speculations could be correct for Bansuri Swaraj. Then we have Pravesh Verma, whose constituency is West Delhi, so he'll be retaining from West Delhi. So certainly there are leaders, because we also have Manoj Tiwari here. So Manoj Tiwari, Pravesh Verma will be fighting from their constituencies, right? They'll be retaining their own constituency, but the new name that is going to upcome from Delhi will be Bansuri Swaraj, this time from the New Delhi seat. Megha. Right, Mahima, thanks for giving us those details. Stay on with me, because I'm going to shift my focus to Madhya Pradesh, because as per sources, the Madhya Pradesh BJP chief V.D. Sharma has spoken on the list of the BJP candidates. The state BJP chief has said that the party will be releasing the list in the next couple of days.
The Madhya Pradesh BJP has also held a meeting to discuss this. On the telecast with me to give details about this is Vaibhav Gupta. Vaibhav, what's the development? What is the news coming in from Madhya Pradesh? We were getting to know that Shivraj Singh Chauhan may be contested from Vidisha. बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो रायशुमारी की गई थी और शिवराज सिंह चौहान का नाम भोपाल और विदिशा लोकसभा सीट से तय किया गया था। फिर वो दिल्ली पहुंचा था, सीसी की बैठक में भी उनका नाम दिया गया था। हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करते हैं, सिंधिया का नाम भी 2 लोकसभा सीटों से गया था, गुना और शिवपुरी, गुना से और ग्वालियर से। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से लड़ना चाहते क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें यहीं से हार मिली थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की बात की जाए तो उनका नाम भी रायशुमारी में आया था, उनका नाम भी भोपाल लोकसभा से गया था, इसके साथ ही खुजरा लोकसभा से गया। लेकिन जिस तरह का सीसी की बैठक आज जो सोर्सेस से मिल रही है वो यही है कि भोपाल से जो सांसद हैं उन्होंने जिस तरीके से विवादित बयान दिए थे और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने मेहनत की थी, फिर जिस तरह से बयान दिए थे, तो भारतीय जनता पार्टी उनको भोपाल से लोकसभा का टिकट दे सकती है। इसके साथ ही बीडी शर्मा को लेकर भी जो जानकारी मिल रही वो यही है कि खजुराहो सीट से उन्हें पार्टी मौका दे सकती है। खजुराहो सीट वही है जहां इंडिया गठबंधन ने सपा समाजवादी पार्टी को वो सीट दी है, मतलब खजुराहो सीट से कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेगा। और गुना से जो खबर आई है वो यही है कि गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया जाएगा। आज बीडी शर्मा से सवाल भी किया गया था कि कल बैठक हुई है, देर रात तक एक बैठक चली है, तो नाम कब तक आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज या कल में बीजेपी मध्य प्रदेश की 5 से 6 लोकसभा सीटों को लेकर नामों की घोषणा कर सकती है। ओके, ऑलराइट। यहाँ पे आप हमें ये भी खबर बताइए, ये जो कमिटी मीटिंग हुई है यहाँ पे जो 100 कैंडिडेट्स के नाम उभर के अभी तक आए नहीं है, स्पेकुलेशन राइफ है। तो शिवराज सिंह चौहान अगर देखे जाए उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया मध्य प्रदेश का, लोकसभा के इलेक्शन लड़ाए जाएंगे, क्या वो कैबिनेट सीट इस समय उनका गोल तो ये होगा, क्या उन्हें कैबिनेट सीट मिल सकती है या नहीं? कोशिश तो यही रहेगी शिवराज सिंह चौहान की, क्योंकि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा था, जब मुख्यमंत्री पद के नाम की घोषणा होनी थी तब भी शिवराज सिंह चौहान का ही नाम आगे था। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि मोहन यादव को कमान दे दी गई, जो कि उस समय जो बैठक चल रही थी प्रदेश भाजपा कार्यालय सबसे लास्ट में बैठे हुए थे, तो उसके बाद से वो विधानसभा भी बहुत कम आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और जिस तरीके से लोकसभा चुनावों को लेकर उनका नाम आ गया है तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि सामंजस्य बैठाने की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा की जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान को उनके कद के हिसाब से पद दिया जाए। तो अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तो केंद्रीय मंत्री पद के दावेदार वो जरूर होंगे। Okay, thank you for giving us those details. I'm going to shift my focus to another important state, which is Andhra Pradesh. Now, in this big development, BJP is not ready to forgive the TDP even after they have insulted Pawan, and they have sent a strong message to Jana Sena that they want to grow but not be slaves of the party. The BJP is already in touch with 50 of the MLAs and the final decision is likely in a couple of days. I have with me, do we have Madhu Sharma on the telecast with us, who's going to tell us give us more information about this piece of information about Jana Sena and BJP and the friction between them with regards to the 50 leaders and the appointment of them to be fielded from the state of Andhra Pradesh. Meanwhile, we also have gotten to know that, all right, we'll get Madhu Sharma in just a short while. Meanwhile, I have other reporters as well. Rushali, what's happening in Maharashtra? Because at this time, we also got to know that Sharad Pawar had invited his nephew Ajit Pawar. There was Eknath Shinde, the chief minister, as well as the deputy chief minister Devendra Fadnavis from the BJP, who were invited for that dinner tomorrow. They seem to have rejected that invite. Well, Sharad Pawar has sent an invitation to Chief Minister Eknath Shinde and both the Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis and Ajit Pawar, since they all are having a program in Baramati, the hometown of Sharad Pawar. So Sharad Pawar has made a point over here, and he has invited all the three as a guest for the dinner. But CM Eknath Shinde very politely has refused this
dinner invitation. At the same time, Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis also rejected very politely this dinner invitation. So far, there is no response from Ajit Pawar. But if at all, if these two CM and DCM Devendra Fadnavis would have accepted it, then it was we could have considered it as a big shock for Ajit Pawar. And this is something that, you know, in a coalition government, they have tried to maintain harmony within the party by rejecting this dinner Right. of Sharad Okay. Pawar. Also But, give it me, was a dinner give me diplomacy. details, Rushali, about, the BJP has been tight-lipped when it comes to the Maharashtra seats thus far. There is an alignment, there is a collaboration over here. We see that there is BJP and then you have the Eknath Shinde Shiv Sena. What sort of a seat sharing pact will be signed? Is there any rumors floating? Are you being able to get information from your sources with regards to that? Well, there are 48 seats of Lok Sabha in Mumbai, in Maharashtra, and as far as the 48 seats are concerned, BJP will definitely get more and more seats. So here, BJP is actually targeting 34 to 35 seats, which they wish to, contest on. But here, Shinde fraction is the important fraction where Shinde has been offered only 12 seats. Remember, Shinde is having 13 sitting MPs, and he had to cut off one if he goes with this particular formula which was proposed to him. But he has completely rejected that. The two points here BJP has made: one, to contest on the 12 seats, and secondly, Shinde and NCP, both Ajit Pawar, will fight the election on the symbol of BJP, that is Lotus. Okay. But we are learning that they have refused this idea and they have chosen to contest on their respective symbols. And as far as the Shinde is concerned, he is more keen to at least contest on 18 seats. So he has been demanding for the 18 seats, but so far there is no clarity whether Shinde will get those 18 seats or not. So everyone is actually waiting for the BJP's first list, which will clear the air. Okay, all right. Thanks, Rushali, for giving us those details. I'm going to quickly shift my focus to Rajasthan, where sources are telling us that Vasundhara Raje, the regional satrap, is likely to sit out this time for the Lok Sabha elections. Manu on the telecast with me. Manu, give us details. What's happening in Rajasthan? What's the buzz? देखिए, राजस्थान को लेकर के भी कल जो कोर कमेटी की जो वहाँ दिल्ली के अंदर टीम पहुंची हुई थी, उनके साथ में सीसी की बैठक हुई है। तो सीधे तौर पर बताया जाए तो राजस्थान में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 से ज़्यादा चेहरे बदले जा सकते हैं। इस बार 25 सीटें हैं राजस्थान के अंदर लोकसभा की, उसमें 15 चेहरे बदले जा सकते हैं। इसका मुख्य कारण एक तो ये है कि 6 सीटें तो वो है जहां पर उनको विधानसभा चुनाव लड़ा दिया गया सांसदों को, जिसमें 3 लोग हार गए थे चुनाव और 3 लोग जीते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर 6 सीटों पर तो नाम तय माना जा रहा है। दूसरा, जो पार्टी ने जो अपना इंटरनल सर्वे कराया है, उसके अंदर कुछ सीटें ऐसी है जिनको बी कैटेगरी में रखा गया है, जहां पर पार्टी अपने आप को पूरा 100% जो मिलना चाहिए वहां से इनपुट, उसमें थोड़ी कमी मान रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर कैंडिडेट बदले जा सकते हैं। तो जो पहली सूची जो मानी जा रही है, जिसमें आने वाली है, उसके अंदर करीबन 7 लोगों के नाम तय माने जा रहे हैं, जिसमें जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत है, बीकानेर से अर्जुन मेघवाल है, चूरू से राहुल कसवा है। इसके अलावा चित्तौड़ से जो सीपी जोशी जो है प्रदेश अध्यक्ष, उनका नाम तय माना जा रहा है। तो ये जो और जो झालावाड़ वाली सीट है, 12 झालावाड़, वहाँ का ये चल रहा है कि वहाँ पर दुष्यंत सिंह जो है वसुंधरा राजे के पुत्र, उन्हीं को चुनाव लड़ाने की बात है। लेकिन अंदर खाने ये भी बात निकल करके सामने आ रही है, कल बैठक में खुद वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, वो खुद भी मौजूद थी। तो उनको भी ऑफर किया गया है कि अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहें। लेकिन पार्टी के सामने सबसे बड़ी बात है कि जो अगर किसी विधायक को, जो अभी राजस्थान विधानसभा की सदस्य भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनको कहीं लोकसभा का चुनाव लड़ाती है, तो और भी विधायकों को क्या इस श्रेणी में लाया जाएगा कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। क्योंकि राजस्थान के अंदर जब 15 चेहरे नए उतारे जाने हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो विधानसभा के अंदर दिग्गज हैं, जो चेहरे हैं पार्टी के, उनमें से कुछ लोगों को मौका दिया जाएगा क्या, लेकिन वो पहली सूची आने के बाद ही मालूम हो पाएगा। जी बिल्कुल। यहाँ पे आपने इन बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए। अब गजेंद्र सिंह शेखावत तो खुद कैबिनेट की मिनिस्ट्री में है। यहाँ पे कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी
परहैप्स ये पोजीशन हो सकती है कि वो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट पोजीशन में आ सके अगर बीजेपी इलेक्शन जीतती है? देखिए, दिग्गज चेहरों के अंदर नाम जो देखा जाए तो अभी वर्तमान के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, कैलाश चौधरी हैं और अर्जुन मेघवाल हैं। ये लोग कैबिनेट के अंदर मोदी के साथ में हैं। अब जो दोबारा से अगर बनती है तो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी बात और सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है फैक्टर वो ये है कि जाति के हिसाब से कहीं ना कहीं मुख्य पद भी दिए जाने की बात आती है राजस्थान के अंदर, चाहे वो राजस्थान की कैबिनेट बनी हो और वो एक मैसेज जाता है जिसके माध्यम से, तो उसमें दिग्गज नेताओं के रूप में एक नाम निकल करके और सामने आ रहा है। भूपेंद्र सिंह जो हैं यादव, उनका भी नाम निकल करके आ रहा है कि उनको भी अलवर से टिकट दिया जा सकता है। तो ये 3-4 नाम ही बड़े चेहरे निकल करके सामने आते हैं, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत है, अर्जुन मेघवाल है, कैलाश चौधरी है। एक जो बांसवाड़ा से जो नया नाम निकल करके आया है वो अभी हाल ही में पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय। वो एक आदिवासी चेहरे के रूप में पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं और उनको भी अगर वो टिकट मिलता है और वो चुनाव जीत करके आते हैं तो उनको भी मंत्री पद दिया जा सकता है। जी Okay, all right. Thank you, Manu, for giving us all those details from Rajasthan. And now shifting my focus to West Bengal, where Mamata Banerjee is scheduled to meet the Prime Minister, who is in Raj Bhavan in Kolkata today. His day one in West Bengal saw road shows and rallies where he addressed the people who had gathered in large numbers to meet the Prime Minister to hear him out. And Mamata Banerjee at this point has left from Raj Bhavan. She met the Prime Minister. She said that this was a courtesy call that was made by her to the Prime Minister. Joining me on the telecast right now is Renik Datta. Renik, what's the latest development? Mamata Banerjee ने Prime Minister से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि ये एक courtesy meet किया गया है उनके द्वारा। एकदम देखिए, ममता बनर्जी आज राजभवन में आके प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात भी की है। करीब आधा घंटे तक उन लोगों का बीच में बातचीत हुआ और ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि ये सिर्फ प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल मेंटेन है और ये काटेसी मीट है, इसमें कोई पॉलिटिकल या कोई गवर्नमेंट का बात नहीं हुआ है, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। करीब आधे घंटे राजभवन में ममता बनर्जी थे और शाम को 6 बजे वो राजभवन में पहुंचे और उसके बाद ही प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग भी हुआ और उसके बाद 6:30 बजे वो निकल गए और ये मीटिंग सिर्फ काटेसी मीटिंग है। मगर एक तरफ देखा जाए तो ये जो प्रधानमंत्री जी का ये जो सफर, बंगाल सफर 2 दिन का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है बंगाल बीजेपी के लिए, क्योंकि आज आरामबाग में देखा गया कि जो जनसभा था वो जनसभा में जिस परिमाण से लोग आए थे उसी जगह से बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का ये जो बंगाल में बीजेपी का जो प्रचार, वो प्रचार भी आज हो गया और स्टार्ट हो गया बोल सकते हैं कि इलेक्शन को सामने रखते हुए, क्योंकि ये जो आरामबाग सीट है, ये आरामबाग सीट में 2019 का जो इलेक्शन था उसी इलेक्शन में सिर्फ 1142 वोट से हारे थे बीजेपी और इस सीट को टारगेट करेंगे बीजेपी और ऐसा ही सुकांतो मजूमदार की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है। सुकांतो मजूमदार नरेंद्र मोदी जी के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि कुछ ही वोट में हम लोग इस सीट में हारे थे और ये सीट हम लोग प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गिफ्ट देना चाहते हैं और इस बात को लेकर ही बंगाल बीजेपी एक टेंटेटिव लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें दिखा जा रहा है कि जो 18 एमपी इधर है वो 18 सीट में 2 एमपी बीजेपी छोड़ के टीएमसी ज्वाइन कर लिए हैं और 2 ये बाकी जो 16 है। In fact, there are visuals also coming in. Let's quickly replicate my computer screen onto the television screen. That is the visual of Prime Minister Narendra Modi meeting Mamata Banerjee at Raj Bhavan. So there you have it, that visual. Renik, आप यहाँ पे बता रहे थे कि कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि वेस्ट बंगाल के रूरल पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में हैं जहाँ पे बीजेपी चाहती है ममता बनर्जी टीएमसी से सीट छीनना, और ये क्या प्रोबेबिलिटी है, कौन सी ये सीटें हैं? आपने बोला आज ऐसी सीट पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रैली शुरू की थी। एकदम देखिए, बीजेपी की तरफ से टेंटेटिव एक 12 सीट को टारगेट किया गया है, जिस 12 सीट के अंदर एक तो आरामबाग है जिस जगह में आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद मीटिंग की है, पब्लिक मीटिंग की है। वो सीट पिछली बार 1100 वोट से हार गए थे बीजेपी और इसी सीट को पहला टारगेट वो लोग तैयार कर रहे हैं। दूसरा है आसानसोल। ये आसानसोल और बैरकपुर, ये दोनों
जगह में बीजेपी का कैंडिडेट भी जयी हुए थे, बाबुल सुप्रियो और अर्जुन सिंह। ये दोनों फिर टीएमसी में ज्वाइन कर लिए। उसके बाद ये दोनों सीट के कौन से कैंडिडेट दिया जाएगा, इस बारे में भी चर्चा होगा। मगर सबसे बड़ा सीट बशीरहाट, ये बशीरहाट सीट में नजर रहेगा, क्योंकि पूरा संदेशखाली जो इशू, ये संदेशखाली इशू बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र के अंदर में पड़ता है। और बशीरहाट में एमपी नुसरत जहान को लेकर जो क्षोभ है, उसको ही टारगेट करना चाहते हैं बीजेपी, और इसी वजह से उसी जगह को टारगेट कर रहे हैं। दूसरा है बीरभूम। जिस बीरभूम एरिया का अनुब्रत मंडल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अरेस्ट किया गया है, वो बीरभूम को भी अभी बीजेपी की तरफ से टारगेट किया जाएगा। उसी जगह में कौन से लोग दिया जाएगा वो भी देखा जाएगा। और दो सीट, कांथी जो सीट है, ये कांथी सीट में जो टीएमसी के होकर कैंडिडेट है वो है शुभेंदु अधिकारी, जो अपोजिशन लीडर है, उनके पिताजी शिशिर अधिकारी। अभी बीजेपी की तरफ से ये शिशिर अधिकारी के जगह में ये कांथी लोकसभा क्षेत्र में किसको दिया जाएगा, ये भी डिसाइड करना है। और उसके साथ साथ ही बीजेपी ये जो 12 सीट का एक लिस्ट तैयार किया है, वो 12 सीट को वो टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का 2024 साल में पूरा टारगेट है 30 के ऊपर सीट लेना बंगाल से। और करीब उनके हाथ में अभी भी 18 सीट है, जिसमें से 16 सीट में एमपी है बीजेपी का, और दोनों एमपी बीजेपी छोड़ के टीएमसी ज्वाइन कर लिए हैं। जी बिल्कुल। ऑल राइट रैनिक, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर गिविंग अस दोज अपडेट्स। लेट्स क्विकली आल्सो शिफ्ट आवर फोकस टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन, वेयर इन Assam the Chief Minister Himanta Biswa Sarma has now announced that the BJP is going to be fighting from 11 of the 14 seats. The rest of the seats, 3 of them are in fact going to be given to the allies of the BJP in Assam. Joining me on the telecast is my colleague Vijay Sharma on the telecast with me. Vijay, big announcement made by the Assam Chief Minister. So the seat sharing pact has already been announced. 11 of the 14 seats are going to be fought by the BJP. निश्चित तौर पर देखिए, असम में 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 2 लोकसभा सीटों को जो अलायंस जो पार्टी है यूपीपीएल और एजीपी, उनको छोड़ा गया है। और मैं सीटों, अगर लोकसभा सीट की बताऊं तो धुबरी और बरपेटा, माफ कीजिएगा, बरपेटा और कोकराझार यूपीपीएल की सरकार है, और दूसरी तरफ मैं कह दूं बरपेटा को एजीपी के लिए छोड़ा गया है। और संभावित जो तालिका है वो हमारे एक्सक्लूसिव हमारे हाथों में पड़ा है, और मैं संभावित जो तालिका है 14 में से 11 का जो तालिका है, संभावित जो तालिका मैं आपको बता रहा था, एक्सक्लूसिवली भी हमारे हाथ में ही, हमारे चैनल के हाथ में ही पड़ा। मैं बता दूं, डिब्रूगढ़ में सर्बानंद सोनोवाल जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं असम में, और अभी मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री है, जहाज मंत्री है। और दूसरी तरफ काजीरंगा जो विस्तार जो किया गया था असम में लोकसभा और विधानसभा सीटों का जो विस्तरण हुआ था, उसमें काजीरंगा को नए तौर पे शामिल किया गया था। पहले कोलियाबर था लोकसभा समय, अब काजीरंगा में तब्दील कर दिया गया। वहां के जो इस बार जो वहां पे कैंडिडेट जो बीजेपी खड़ा करेगी, जहां तक हमें सोर्सेस से पता चला है, कामाख्या प्रसाद तासा जो राज्यसभा के सांसद है। दूसरी तरफ बता दो, जोरहाट में पहले जो तपन गोगोई थे, जो छात्र नेता थे, उसके बाद वो विधायक बने, उसके बाद सांसद बने तपन गोगोई। दूसरी तरफ बताऊं, तेजपुर में रंजीत दत्ता, पहले सर्बानंद सोनोवाल वो कैबिनेट मंत्री थे, और दूसरी तरफ कृपा नाथ मल्ला जो करीमगंज के सिटिंग एमपी है, सांसद अभी भी है, उनको टिकट दिया जा सकता है। और दूसरी तरफ बताओ, सिलचर बराक जो इलाका आता है, जो सिलचर में जो परिमल शुक्लबैद्य जो अभी भी असम सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, जो आबकारी विभाग और जो ट्रांसपोर्ट विभाग के मंत्री हैं, वो उनको इस बार सांसद बनाने के मूड में बनी है बीजेपी सरकार। और दूसरी तरफ बता, नौगांव में सुरेश बोरा, और नौगांव की अगर बात बता दो तो नौगांव में अभी कांग्रेस के दखल में जो प्रद्युत बरदले जो वहां के सांसद थे, अब उन्हें वहां पे बीजेपी अपनी तरफ से सुरेश बोरा को खड़ा करेगी। और तरफ लखीमपुर जो सिटिंग सांसद हैं अभी भी प्रधान बरुआ, उनको भी वहां से फिर से चुनाव लड़वाया जाएगा। और दूसरी तरफ दीपू में अमर सिंह तीसो। तो ये 14 जो लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 11 संभावित जो सांसदों जो उम्मीदवार हैं, सांसद बनने वाले जो उम्मीदवार हैं, उनकी ये लिस्ट एकमात्र आईटीवी नेटवर्क आपके अपने दर्शकों को बता रहा है। और ये संभावित जो लिस्ट है वो एक तरह से कहीं ना कहीं मोहर लग सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है सामने, जिसको देख के सारी पार्टियां जो है पूरी तरह से तैयार है। और बिल्कुल, थैंक यू विजय फॉर गिविंग अस दोस डिटेल्स। कमिंग इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम Assam, the seat sharing pact has already been finalized between the NDA
members. On that note, I slip into a short break. Thanks for watching. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.